Hello kids, today we will study chapter number 10, that is geometry. Kids, in this chapter we are going to study about some basic concept related to geometry. So let's start the chapter. First of all, look at this picture. There is a picture of a ship, and on here he's saying draw the standing lines blue, sleeping lines red, and slanting lines green. Kids, on here this is the picture of ship. In this picture, there are some lines. जैसे that is standing lines like that. This in these standing lines you will do blue color, and some sleeping lines like that. These types of lines you will do red color, and some slanting lines like that. In these lines you will do green color, or draw the curved lines orange. There are given curved lines. In these curved lines you will do orange color. So kids, you will fill the color very well. Now next topic start is shapes around us. Kids, let us recognize these basic shapes in the following collections. Write R in the rectangle, S in the square, T in the triangles, and C in the circles. यहाँ पर हमें कुछ बेसिक शेप्स दी हुई हैं. आपको क्या करना है, जो रेक्टेंगल होगी उसके लिए आर लिखना है, एज इट इज स्क्वायर के लिए एस लिखना है, ट्राइंगल के लिए टी और सर्कल के लिए सी. दिस इज सम बेसिक शेप्स. दैट इज द शेप ऑफ रेक्टेंगल, यू विल राइट ऑन हेयर आर. This is the shape of triangle, you will write on here T. This is the shape of square, you will write on here S. And this is the shape of circle, you will write on here C. Like that, this remaining you will fill yourself. Now next topic is simple geometrical concepts. Kids, the word geometry is derived from the Greek word geo meaning earth and metria meaning measurement. किड्स, पहले हम ज्योमेट्री का मतलब पढ़ते हैं. ज्योमेट्री इज derived from Greek word that is geo plus metria. Geo meaning होता है earth and metria means measurement. That is, study some basic geometrical concept. First, point. Point is represented by a dot to show a defined position. जो किसको शो करता है, पोजीशन को. दैट इज दिस लाइक दैट इज ए, दैट इज बी, दैट इज एक्स. ऐसे पॉइंट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर. आप देख रहे हैं ये कैपिटल लेटर से डिनोटेड हैं, ए बी सी डी एक्सेट्रा कुछ भी. फॉर एग्जांपल हियर ए एक्स एंड बी, ये हमारे क्या है, दैट इज द पॉइंट्स. नेक्स्ट, लाइन. स्ट्रेट लाइन इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग टू पॉइंट्स. वो स्ट्रेट लाइन जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमारी ड्रॉ हुई है, दैट इज लाइन. हैज नो पॉइंट्स एंड पॉइंट्स. लाइन में कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होता, बिकॉज इट एक्सटेंड्स एंडलेस इन बोथ द डायरेक्शन. इट हैज नो डेफिनेट लेंथ. लाइन को हम दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं, इसकी कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होती है. अ लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स. लाइन ए बी इज डिनोटेड एज ए बी. लाइन जो होते हैं ना, वो एक सेट होता है पॉइंट्स का, और हम इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं. When two lines meet at a point, they are called intersecting lines. जहां पर टू लाइंस जो है ना मीट करती हैं, लाइक दैट दिस. तो ये जो पॉइंट होता है, जैसे यहाँ पर पी क्यू एंड एक्स वाई लाइन जो इंटरसेक्टिंग कर रही है, तो इनका जो मीटिंग पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग. ये हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस जो जहां पर मीट करती है. When two lines meet a point, they are called intersecting lines. For example, PQ and XY are intersecting lines हो गई, क्योंकि ये meet कर रही है इस point पर. Now next is line segment. Line segment is a part of line. Line segment जो होता है ना, वो line का ही एक part होता है. It has two end points or cannot be extended. जैसे
जैसे लाइन जो है ना वो एक्सटेंड हो सकती है इन बोथ डायरेक्शन, बट लाइन सेगमेंट नहीं, इट हैज फिक्स्ड लेंथ, इसकी जो लेंथ होती है दैट इज फिक्स्ड. If we mark 2 points P and Q and join them, we get a line segment represent as a PQ. इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज रे, लाइन सेगमेंट एक्सटेंडिंग एंडलेसली. अगर कोई लाइन सेगमेंट एंडलेसली वन डायरेक्शन में ही एक्सटेंड होती है दैट इज कॉल्ड अ रे. इट हैज ओनली वन एंड पॉइंट. If we mark 2 points A and B and join them extending endlessly in B, we get a ray AB represent as this. इसको हम एक तरफ एरो लगाकर इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. Now kids, नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ लाइन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइन, स्ट्रेट एंड कर्व. टू टाइप्स की हमारी ये लाइन हो गई. आगे देखिए, व्हेन यू होल्ड अ पीस ऑफ थ्रेड टाइटली यू गेट अ स्ट्रेट लाइन. अगर आप एक थ्रेड को टाइटली अगर आप उसको पकड़ेंगे तो दैट विल बी द horizontal straight line. Now the straight line can be horizontal. Straight line हमारी horizontal भी हो सकती है और vertically भी हो सकती है and slanting भी हो सकती है इस तरीके से. So when you hold a piece of thread loosely, you can get a curved line. जब आप उसको loosely पकड़ लेंगे thread को, that will be the curve. These are the curved lines. ये हमारी कैसी लाइंस है? कर्व लाइंस. ऐसे इस तरीके से ड्रॉ लाइन दैट विल बी वर्टिकल. ये लाइन जो ऐसे टेढ़ी ड्रॉ होगी दैट विल बी स्लैंटिंग एंड दैट देयर आर आल्सो स्लैंटिंग लाइंस. नाउ किड्स, on the base we will start exercise 10.1. first question, write if each a point, line segment, line और ray, also name them. आपको ये बताना है कि क्या है ये, पॉइंट है, लाइन सेगमेंट है, लाइन है, रे है और उसका नेम क्या है. जैसे ये जो पहली है दैट इज द, व्हाट इज दिस, दैट इज लाइन. यू विल राइट ऑन हेयर ए बी एंड इसका सिंबल both sides and that is line. now जैसे ये पॉइंट है एक तरफ, दूसरी तरफ ये एरो है, दैट इज द PQ एंड इसका नेम क्या है PQ का, दैट इज रे. किड्स, as it is remaining you will do yourself. second, fill in the blanks. पहला है line segment has two end points. लाइन सेगमेंट में टू एंड पॉइंट्स होते हैं. सेकंड, अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स. लाइन में तो कोई एंड पॉइंट होता ही नहीं है. रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ. सी द फिगर, हाउ मेनी रेज आर देयर इन द फिगर, नेम देम. तो यहाँ पर अगर हम पहली फिगर में देखें तो देयर आर, यहां से स्टार्ट करते हैं, दैट इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट O. तो O से ये OB, OC, OD, OE, OF, OG, OH, OA, ये सब क्या है, there are rays and how much, that is 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये 8 हैं और इनके अगर हम नाम लिखें तो दैट इज OA, OB, OC, OD and OE, OF, OG and OH. Now remaining second figure you will do yourself. Next topic, plane figure. Kids, plane figure is any collection of points on a plane. Plane figure क्या होता है, ये any collection है points का जो कि plane पर होता है. Now kids, सबसे पहले हम पढ़ते हैं related to this triangle. Look at the figure alongside here. ABC is a triangle. It has three sides, three vertices. AB, BC, CA are the sides of the triangle ABC. Vertices of triangle ABC are ABC. Triangle ABC is denoted by, that is this. अब पहले आप फिगर को देखें. ये जो 3 पॉइंट्स हैं हमारे, that is this. When you will meet these points A, B, B, C, C, A, then you can find easily a triangle. And AB, BC, CA, there are the sides of the triangle, that means 3. And this is the points A जहां पर 2 lines meet कर रही हैं, B and C. This will be the vertices. And kids, vertices of a triangle, जैसे ये A, B and C है,
तो हम एक ट्राइंगल को अगर ड्रॉ करेंगे, यू विल ड्रॉ द स्मॉल सिंबल ऑफ ट्राइंगल, this is the small symbol of triangle and you will write ABC like that this. तो आप ऐसे ट्राइंगल को शो आउट करेंगे. नेक्स्ट रेक्टेंगल. यहां पर ये फिगर है रेक्टेंगल की, जहां हमारे ABCD, एक ये इसका नेम हो गया ABCD, इस पूरे को ये कवर कर रहे 4 पॉइंट्स रेक्टेंगल को, तो दैट इज द नेम ऑफ ABCD इज अ रेक्टेंगल. इसकी साइड्स कितनी है? AB, BC, CD, DA. देयर आर 4 साइड्स. ऐसे ही इसकी 4 साइड्स हैं एंड ABCD ये इसके हो गए 4 वर्टिसेस. तो AB, BC, CD एंड DA आर साइड्स हो गए ABCD की. वर्टिसेस इसके कौन कौन से हो गए? ये अलग अलग. एंड द लेंथ ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, जैसे ये अपोजिट साइड्स ये हो गई, इसकी अपोजिट ये हो गई एंड इसकी अपोजिट ये हो गई. तो देयर आर द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स. और ये कैसे होते हैं? दैट विल बी इक्वल. तो ऐसे AB जो होगा वो इक्वल हो जाएगा CD के एंड BC जो है वो इक्वल हो जाएगा AD के. रिमेंबर इट. नाउ किड्स, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा स्क्वायर. दैट इज द फिगर ऑफ स्क्वायर ABCD. बिकॉज ऑफ ये 4 पॉइंट्स मिलकर जो फिगर बना रहे हैं दैट इज स्क्वायर. इसकी भी 4 साइड्स होती हैं, 4 वर्टिसेस होते हैं एंड दैट इज AB, BC, CD एंड DA. और एज इट इज इसके 4 वर्टिसेस ABCD ये होते हैं. दैट इज AB, C एंड D. और ईच साइड जो होती है ना इसकी, जैसे ये हम इसकी बात करें AB की, BC की, CD की एंड DA की, ये सब कैसी होती है? इक्वल लेंथ में होती हैं. A square is a rectangle. Remember it. एक स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है बट एवरी रेक्टेंगल विल नॉट बी अ स्क्वायर. दैट इज द कॉन्सेप्ट related to square and rectangle. Now next topic is circle. Circle is a closed shape. It is made of only one curved line. It does not have any vertex or sides. ये कर्व लाइन से बनता है, इसमें कोई भी वर्टेक्स नहीं होता, ना कोई लाइन होती है. अब बात करते हैं डायगोनल. दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक. लुक एट द गिवन रेक्टेंगल. इट्स वर्टिसेस A and C आर जॉइंड. ये आपका एक रेक्टेंगल है, अगर आप A से C को ज्वाइन कर दें, जैसे ये इन्होंने ये कर रखा है, और B से D को ज्वाइन कर देंगे, तो दैट इज द लाइन, डॉटेड लाइन सेगमेंट्स. ये जो AC एंड BD है दैट इज डायगोनल्स ऑफ ABCD. तो डायगोनल्स क्या होते हैं? लाइन होती है जो जॉइंट्स होती है वर्टिसेस को ऑफ अ शेप दैट आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर. यानी देखिए ये A से C ज्वाइन है एंड B से D ज्वाइन है. नाउ किड्स, रेक्टेंगल, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ. ये भी याद रखेंगे, जो डायगोनल्स होते हैं रेक्टेंगल के वो इक्वल होते हैं लेंथ में, और स्क्वायर के जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं लेंथ में. नाउ ऑन द we will study exercise 10.2. फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग शेप्स. जैसे ये फर्स्ट शेप किस चीज की है? दैट इज द स्क्वायर. एंड सेकंड शेप दैट इज द, ये स्क्वायर हो गया एंड दैट इज रेक्टेंगल. यू विल राइट ऑन हेयर रेक्टेंगल. remaining 2 you will do yourself. Second, write the number of triangle in each of the following figure. जैसे पहले में बात करें तो एक ये है, दूसरा ये हो गया, थर्ड एंड दैट इज फोर्थ, और इसके अलावा अगर हम इस पूरे की बात करें तो एक ये हो गया फिफ्थ. तो देयर आर 5 triangles in first figure. As it is remaining you will do yourself. Now next topic, solid figure. अब हम पढ़ने जा रहे हैं solid figure. Look at these pictures, that is solid shapes. Circle, this type of, that is crayon color, duster and cap also. Plane and curved surface क्या होते हैं इसमें? The part of an object which we see, touch and feel is known as surface. ऑब्जेक्ट के जिस पार्ट को हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, दैट विल बी द सरफेस. सरफेस कैन बी प्लेन और फ्लैट और कर्व. मतलब सरफेस जो होता है ना वो प्लेन यानी कि फ्लैट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है. फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस ऑफ अ सॉलिड. ये 3 टाइप्स. फेस क्या होते हैं, एजेस क्या होती हैं एंड वर्टिसेस क्या होते हैं सॉलिड के. अब हम इनको रीड आउट करते हैं. पहले पढ़ने जा रहे हैं फेस. सरफेस ऑफ अ सॉलिड शेप. जो सरफेस होता है सॉलिड शेप का उसको हम कहते हैं फेस. द फेस ऑफ अ सॉलिड
could be plain or curved. जो फेस है सॉलिड का वो प्लेन भी हो सकता है और कर्व भी. एजेस क्या होती हैं? द लाइन वेयर टू फेसेस मीट, जहां पर टू फेस मीट करते हैं, दैट विल बी द एज. लाइक दैट दिस, यहाँ पर ये टू फेस मीट कर रहे हैं इस लाइन के थ्रू, तो दैट विल बी द एज. तो किड्स, द एजेस ऑफ अ सॉलिड कुड बी स्ट्रेट और कर्व. सॉलिड की जो एज है वो कर्व भी हो सकती है और स्ट्रेट भी हो सकती है. नाउ नेक्स्ट वर्टेक्स, पॉइंट वेयर थ्री एजेस मीट, जहां पर थ्री एजेस मीट करती हैं, लाइक दैट दिस. जैसे यहाँ पर ये थ्री एजेस मीट कर रही हैं, 1 2 एंड 3, तो दैट विल बी द वर्टिसेस. वर्टेक्स ये हो गया, ये 1 2 3, यहाँ पर ये 3 मीट कर रही हैं, तो ये वर्टेक्स हो गया, ये इसका फेस हो गया और ये इसकी एज हो गई. तो किड्स, that is corner or vertex. Now next topic is cube. Cube की figure like that this होती है. Remember it. Cube has 6 faces. Also remember it. 6 faces होते हैं. इसकी same shape होती है, size होता है, 8 corners कह दीजिए या vertices कह दीजिए, 12 edges होती हैं इसमें. All the edges of the same size and straight होती हैं. दैट इज द क्वालिटी ऑफ क्यूब, कि इसमें 6 फेसेस होते हैं, 8 कॉर्नर्स हैं एंड 12 एजेस होती हैं और इसकी फिगर दिस टाइप होती है. क्यूबॉइड, क्यूबॉइड हैज आल्सो 6 फेसेस बट ऑल आर नॉट इक्वल. किड्स, क्यूब विल मेक with the help of square. For this reason you will say all edges are same size, but cuboid will make with the help of rectangle. For this reason all are not equal. Opposite faces of a cuboid are the same in shape. जो opposite होते हैं, because of rectangle में opposite sides equal होती हैं, तो इसमें भी इस टाइप का ही है, जो इसके opposite faces होंगे वो equal होंगे, same in shape and size इसमें, but 8 corners होते हैं, 12 edges होती है और all are not equal because of it is made up by rectangle. Now next difference between cube and cuboid. तो पहला तो यही हो गया, opposite faces are of the same shape होते हैं, किसमें? क्यूबॉइड में. In a cube all faces are the same shape and size. इसमें तो opposite होते हैं, इसमें सारे ही क्यूब में इक्वल होते हैं. क्यूब में all the edges are equal होती हैं, whereas क्यूबॉइड में edges can be different size. इसमें डिफरेंट साइज की भी हो सकती है. अब पढ़ते हैं, दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक, सिलेंडर. लुक एट द फिगर ऑफ द सिलेंडर. सिलेंडर की फिगर दिस टाइप होती है. इट हैज 2 प्लेन फेसेस, इट्स टॉप एंड बेस. ये इसके 2 प्लेन फेसेस होते हैं, 1 कर्व फेस होता है, दैट इज द कर्व फेस. बोथ द प्लेन फेसेस ऑफ अ सिलेंडर आर ऑफ द सेम शेप एंड साइज. जो इसके टॉप और बॉटम में होते हैं ये सेम साइज के होते हैं. इट हैज 2 इक्वल एजेस where the curved face meets with its plane faces. It has no vertex. इसकी 2 इक्वल एजेस होती हैं, where the curved face meets with its plane faces होता है और इसमें कोई भी वर्टेक्स नहीं होता है. अब कॉन में अगर हम पढ़ें, दैट इज द फिगर ऑफ कॉन. It has 1 plane face, its base. ये इसका plane face होता है. Only 1 curved face होता है इसका, that is the curved face. It has 1 vertex. ये इसका एक vertex होता है, only 1. It has 1 curved edges where the curved face meets with its plane face. Kids, एक curved face होता है, curved edge होती है और curved face meets करते हैं with its plane face. Now kids, that is the sphere. Next topic, this is the figure of a sphere. It does not have any edges or vertex. इसका कोई edges और कोई vertex नहीं होता. It has only curved face. Now that is hemisphere. This is the figure of hemisphere. Now when a sphere is cut into halves, each part is a hemisphere. जब हम एक sphere को cut कर देते हैं तो that will be divided into 2 equal hemisphere. Hemisphere has 2 faces, one plane and other curved. It has 1 curved edge. इसकी एक curved edge होती है,
दैट इज द एज, ये इसका प्लेन फेस हो गया, और दैट इज द कर्व फेस. नाउ किड्स, सम ऑब्जेक्ट्स हैव ओनली द प्लेन सरफेस. लुक एट दिस शेप. ये ऐसे फिगर है जिसके जो ऑब्जेक्ट्स ये प्लेन सरफेस होते हैं इनके, जैसे ये मैच बॉक्स हो गया हमारा, ये दैट इज डस्टर. नाउ दैट इज द ऑब्जेक्ट. नाउ सम ऑब्जेक्ट्स हैव ओनली द कर्व सरफेस. ये ऐसे ऑब्जेक्ट है जिनके कर्व सरफेस होता है, लाइक दैट फुटबॉल, बलून, and this is egg. Now some objects have both the plane and curved surface. Look at this. जैसे ये हमारा हो गया सेल निप्पू का, that is the ice cream कॉर्न वाली, and that is the cap. Now on the base we will study exercise 10.3. First question. There are given some questions. That is the first. Is cube a cuboid? क्या cube cuboid है? That is yes. Because आप क्यूब को क्यूबॉइड कह सकते हैं, बट क्यूबॉइड क्यूब नो. रीजन, क्योंकि क्यूबॉइड में इट इज मेड अप बाय रेक्टेंगल, क्यूबॉइड, व्हाइल क्यूब इज मेड अप बाय स्क्वायर. क्यूब में ऑल एजेस विल बी इक्वल, बट क्यूबॉइड में इक्वल नहीं होती है. So this reason you can say cuboid is cuboid a cube? No. Now remaining you will do yourself. Second question, write the name of two objects that have the shape of a cylinder. So cylinder की shape से related what shapes will be? That is cylinder से related you can write is जैसे water bottle, water bottle, and second you can write is cell. Now third question you will do yourself. Now chapter is finished. Kids, I hope you understood very well this chapter. Now we will meet in next chapter. Thank you.